Good morning, friends. Today we are going to start with problem number 15. Look at the question sheet, page number 7.43. 7.43. Problem number 15. Now what they have given? The receipts and payment account of Trust Well Club prepared on 31st March 18 is as follows. Now they have given a receipts and payment account. Two balances brought down rupees 450. Annual income from a subscription. Add outstanding of the last year received this year. Less prepaid of last year. Then there is two other fees. Then there is a donation for building. Building is a capital expenditure. That means donation is a capital receipt. Then on the payment side they have given buy expenses including payment for sports material. That means out of 6,300, 2,700 is for sports material. So balance 3,600 will be sundry expenses. Then there is buy loss on sale of furniture. Cost price rupees 450 and there is a loss of 180. And they have given you buy balance carried down, that is a closing cash. And what they have given additional information. Trustwell Club had balances as on 1st April 17. Furniture 1800. Then there is investment at 5% 27,000. Sports material 6,660. Balance on 31st March 18 they have given. Subscription receivable, subscription receive in advance, stock of sports material as on 31st March 18, 1800. Now what they give? Do you agree with the above receipts and payment account? If not, prepare corrected receipts and payment account and income and expenditure account and the balance sheet. Now it has been asked that whether you agree with the receipts and payment account. So we don't agree with the receipts and payment account because they have given loss on sale of furniture on the payment side. So here we don't take loss or profit. We take a amount that has been received from the sale of furniture. Now here it has been said that there is a loss of 180 और उसका cost price था 450. तो ये 180 रुपए नुकसान से बिका है, यानी फर्नीचर कितने में बिका होगा? उसकी कॉस्ट प्राइस थी 450 और उस पे लॉस हुआ है 180, यानी वो सेल कितने में हुआ होगा? 270. दिस इज अ सेल वैल्यू और सेल वैल्यू कहाँ पे आना चाहिए? इट शुड कम ऑन द रिसीप्ट साइड, यहाँ पे आना चाहिए, बराबर. और उन्होंने कहा लिया उसको? उन्होंने पेमेंट साइड ले लिया 180 एज अ लॉस, तो दैट इज इनकरेक्ट. फर्दर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में कुछ एडिशनल अमाउंट उन्होंने इग्नोर कर दिया है. वहां पे क्या बोला है देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस रुपीज 90 और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल रुपीज 270, यानी करंट ईयर के एज ऑन 31st मार्च 2018 के एडजस्टमेंट दे हैव नॉट टेकन. दे हैव टेकन ओनली एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर. उन्होंने क्या बोला है देखिए, अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन 4590, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव दिस ईयर. करेक्ट, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था वो आपने करंट ईयर में रिसीव किया है. और जो पिछले साल प्रीपेड था, पिछले साल एडवांस में, इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज प्रीपेड, इट शुड बी कॉल्ड एज रिसीव इन एडवांस. तो लास्ट ईयर जो एडवांस में रिसीव हुआ था वो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन में ऐड नहीं होगा, तो उन्होंने उसको बराबर माइनस किया है, बराबर. वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इट विल बी एडेड, नॉट इन रिसीप्ट एंड पेमेंट. तो दिस 90 रुपीज हैज बीन इंक्लूडेड टू दैट सब्ट्रैक्टेड ऑन द रिसीप्ट साइड, क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट ईयर मिल गया है. लेकिन इसमें एक उन्होंने गलती क्या कर दी, जो करंट ईयर का एडजस्टमेंट है, जो करंट ईयर का रिसीवेबल है, उसको माइनस नहीं किया ऑन द रिसीप्ट साइड. करंट ईयर का रिसीवेबल है यानी वो रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा. और जो करंट ईयर में एडवांस में रिसीव हुए नेक्स्ट ईयर के, वो उन्होंने ऐड नहीं किए. करंट ईयर में वो मिल गया है, कौन से ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का है, तो वो उन्होंने ऐड नहीं किया है. तो यहाँ पे दे हैव कमिटेड अ मिस्टेक एज रिगार्ड टू कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन द रिसीप्ट साइड
and furniture ka amount received on sale of furniture, it should come on the receipt side, but they have taken a loss on payment side. So these are the rectification that has to be done under the receipt and payment. So we will rectify that. Further, we will also prepare the opening balance sheet, so that in order to ascertain the opening capital fund. So these are the different accounts we have to prepare. Fine, we will do that. तो यहाँ पे I have prepared corrected receipts and payment, I have prepared income and expenditure account and closing balance sheet. मैंने opening balance sheet नहीं बनाया, जो मैं अभी prepare करता हूँ. Opening balance sheet भी we will have to prepare. So here I am preparing an opening balance sheet. This is opening balance sheet I have prepared over here. Here I am preparing a opening balance sheet. This is working note, balance sheet as on 1st April 17, or you can call it as 31st March 17, and this is what? Opening balance sheet. So we will just incorporate all the items related to opening and closing balance sheet first. तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है additional information में, you can see that Trust Club had balances as on 1st April 17. What are the balances? They have a furniture 1800. Furniture they have worth rupees 1800. Then they have investment at 5%. That is 5% investment they have worth rupees 27,000. Then they have sports material. They have sports material. Opening I am taking 6660 का sports material they have. Then opening cash कितना दिया हुआ है आपको receipts and payment में, though it is incorrect, लेकिन opening balance will not be incorrect. So this is a cash balance. Opening cash balance. Closing cash balance is not correct because we have to rectify the receipts and payment account. Correct receipts and payment we have to prepare. Then these are the things. उसके अलावा अगर आप incorrect receipts and payment account देखेंगे तो वहां पे subscription के बारे में क्या दिया हुआ है देखिए. On the receipt side, add outstanding of last year received this year. यानी last year there was a subscription receivable यानी asset. So we will write over here subscription receivable, or you can call it as outstanding. Subscription receivable of last year is how much? 180. और last year आपको advance में subscription मिला था, that is a liability. Subscription received in advance
What is an amount they have received last year? Advance 90 rupees they have received. So these were the items that belongs to opening balance sheet. और क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है वो भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद करेक्ट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. बैलेंसेस एज ऑन 31st March 18. 31st March 18 को क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 270. Here asset side closing balance sheet I am writing. Subscription receivable. What is an amount of subscription receivable as on last date? 270. Subscription received in advance. Current year में भी there is an advance. Subscription received in advance. कितना है एडवांस में रिसीव करंट ईयर में? 90. पिछले साल भी एडवांस में 90 रुपए आए थे जो करंट ईयर के थे, और करंट ईयर में भी एडवांस में आया है जो नेक्स्ट ईयर के रहेंगे. यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस विल बी फॉर 1890. और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो थे आपको 16-17 में आए थे, तो वो कौन से ईयर के होंगे? 17-18 यानी करंट ईयर के होंगे. बराबर. ये आपको रिसीव हुए नेक्स्ट ईयर के एडवांस में, ये लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव हुए थे जो करंट ईयर के थे. तो यहाँ पे उन्होंने एज ऑन 31st March 18 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है. स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज एन एसेट्स. कितने का है एज ऑन 31st March 18? 1800 rupees. So these are the information they have given, and we have posted this information. Now we will try to prepare a rectified receipts and payment account. The first one we are preparing now. I have taken the additional information items in the opening balance sheet. इसमें से 2 आइटम I have pick up from receipts and payment में उन्होंने जो दिया है, जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट सब्सक्रिप्शन को लास्ट ईयर का अभी क्या किया उन्होंने? ऐड, जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थे तो यहाँ पे ले लिया, और जो करंट ईयर में लास्ट ईयर में एडवांस में रिसीव हुए थे उन्होंने वहां पे माइनस किया रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंदर. तो आई हैव टेकन इन द ओपनिंग बैलेंस शीट एडवांस और आउटस्टैंडिंग. बराबर. बाकी का आइटम्स उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए जो मैंने यहाँ पे जस्ट पोस्ट किए. तो आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई हैव जस्ट पोस्टेड द एडिशनल इंफॉर्मेशन आइटम. नाउ आई एम preparing a rectified receipts and payment, taking into account rectifying all the incorrect information and the missing information. Fine. Now what they have given? 2 balance brought down, यानी 2 opening cash. 2 balance brought down. कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन? ₹450. बराबर. उसके बाद उन्होंने दिया है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड. वी आर राइटिंग 2 सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में क्या है? 4590 उन्होंने दिया है. अब इसमें रूल क्या है? वी हैव ऑलरेडी डन एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम कि अगर पिछले साल कुछ अमाउंट रिसीवेबल था तो करंट ईयर में वो ऐड होगा. उन्होंने भी वही किया है. प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016-17, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में आपको रिसीव होगा. कितना? ₹180. ये 180 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. और पिछले साल जो एडवांस में रिसीव हो गया था वो पिछले साल ही रिसीव हो गया था, तो करंट ईयर में वो रिसीव का कोई सवाल ही नहीं उठता है. अगर इंक्लूडेड है तो क्या करेंगे? लेस. उन्होंने भी क्या किया है? लेस. रिसीव्ड in advance in 2016-17. कितना एडवांस में आया था? 90. यहां तक उन्होंने करेक्ट किया है. बराबर. प्लस 180 एंड लेस 90. लेकिन उन्होंने मिस्टेक क्या कर दी? उन्होंने करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग और एडवांस नहीं लिया. तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? ₹270. इसका मीनिंग है कि 270 रुपए आपको अभी तक मिले नहीं है. तो इसको क्या करेंगे? लेस.
आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017-18 कितना 270 और करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है, सॉरी दिस वन, करंट ईयर में एडवांस मिला है 90 रुपीज। तो करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है यानी पैसा आया, नेक्स्ट ईयर का आपको करंट ईयर में आया, तो इट इज अ रिसीट। तो ये भी इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं ली, तो विल ऐड दिस रिसीव इन एडवांस इन 2017-18 बराबर। ये 2016-17 कौन से ईयर का एडवांस है 17-18 और ये 17-18 में एडवांस आया है कौन से ईयर का है 18-19। कितना एडवांस आया 90 रुपीज। तो ओवरऑल एडजस्टमेंट के बाद क्या फिगर आता है देखिए, एक्चुअल पेमेंट आया कितना 4590 प्लस 180 माइनस 90 माइनस 270 एंड प्लस 90, यह हो रहा है आपका टोटल 4500 रुपीज आपके टोटल हो रहे 4500, जो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, ठीक है। उसके बाद इनकरेक्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है देखिए, टू अदर फीस। अदर फीस से रिलेटेड कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी विल अज्यूम दैट इट इज अ करेक्ट फिगर। कितना है 1800 टू अदर फीस, हाउ मच 1800। उसके बाद क्या है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसमें भी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो विल अज्यूम दैट ये भी रेक्टिफाइड फिगर है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 90,000 का आपका डोनेशन है बराबर। और डेबिट साइड कोई आइटम नहीं है बराबर। और पेमेंट साइड क्या दिया हुआ है बाय एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6300 में स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट एडेड है, तो उसको माइनस करके कितना आएगा 3600 बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी यहाँ पे क्या हुआ है परचेज किया है बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। पेमेंट में दिया हुआ है यानी आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया होगा, इसीलिए उसका पेमेंट दिया है। कितना है 2700, ये 2700 और ये 3600 मिला के 6300 दिया हुआ है आपके पेमेंट में, सिर्फ मैंने उसको रेक्टिफाई किया। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिया है जो इनकरेक्ट उन्होंने दिया है, आपको रेक्टिफाई करने का है। आपने फर्नीचर बेचा तो कितने में बेचा वो इंपॉर्टेंट है। लॉस और प्रॉफिट विल गो अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो हियर यू शुड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे लिखेंगे टू सेल ऑफ फर्नीचर, तो कितने में बेचा अपन ने 450 की कीमत थी, 180 रुपए नुकसान में बेचा, 180 रुपए नुकसान में बेचा, यानी पैसा आया कितना होगा 270 रुपए आपको आए बराबर। उसके बाद है have I completed all the items? Yes, I have completed all the items. उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया है 27,000 रुपए का, जिसपे 5% इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में दिया हुआ नहीं है, तो विल अज्यूम दैट इट इज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, तो वो कहाँ आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बराबर। तो यहाँ पे विल राइट डाउन बाय, ये करेक्ट बैलेंस कितना आ जाएगा आप कैश का बाय क्लोजिंग बैलेंस और बाय बैलेंस carried down, that is closing cash, correct figure, corrected figure, in fact this is a corrected figure। कितना आया closing cash देखिए, balancing figure how much 450 plus 4,500 plus 1,800 plus 90,000 plus 270 minus 3,600 minus 2,700, so your correct closing cash is 90,700
720 is your rectified figure. और आपका टोटल कितना है 97020. दिस इज अ टोटल. तो यहाँ पे आपको क्या मिला क्लोजिंग कैश. क्लोजिंग कैश कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा कैश इन हैंड. दिस इज अ रेक्टिफाइड फिगर. हाउ मच क्लोजिंग कैश यू हैव 90,720. दिस इज हाउ यू हैव रेक्टिफाइड your receipts and payment. Now we will shift to income and expenditure account. Income and expenditure account में we'll just try to take additional information के adjustment first. अभी वहां पे क्या दे रहा है देखिए फर्नीचर. फर्नीचर के बारे में कितना दिया हुआ है आपको. फर्नीचर दिया हुआ है उन्होंने 1800 बराबर. और उसमें से आपने एक फर्नीचर को सेल किया. डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन आपके बारे में कुछ भी नहीं दी हुई है बराबर. तो आपके पास 1800 रुपए का फर्नीचर ओपनिंग था. डेप्रिसिएशन का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया. लेकिन उसमें से एक फर्नीचर आपने बेचा 270 रुपए के 180 रुपए के लॉस पे. तो 180 का लॉस जो है वो कहाँ आएगा. इट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और जो अमाउंट बेच के बैलेंस फर्नीचर है दैट विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो यहां पे आप क्या लेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. कितने का लॉस हुआ 100. नुकसान हो गया. इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन एक्रियल प्रिंसिपल. 180 का लॉस हुआ तो आपने 180 का लॉस यहां पे लिया. क्लियर विद दैट. और अब कितना अमाउंट है 450 का फर्नीचर आपके यहां से गया. तो 450 को किस तरीके से डिवाइड किया है देखिए. 270 आपने डेबिट साइड दिया है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के और 180 आपने लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के. गॉट इट और नॉट. 1800 में से 450 का फर्नीचर यू हैव सोल्ड. यू हैव सोल्ड इट फॉर 270. तो 450 रुपए को डेबिट आपने को डेबिट में लिखना है. तो डेबिट में कहां पे लिख रहे हैं अपन 270 we have written on receipt side and 180 you are writing on expenditure side. So this is how you have done. Now closing furniture कितना आएगा. फर्नीचर आपके पास 1800 का था लेस सेल ऑफ फर्नीचर. सेल ऑफ फर्नीचर को डायरेक्टली 450 माइनस करिए या 180 लॉस और अमाउंट रिसीव 270. अगर ऐसा बताया तो भी चलेगा. ओपनिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर 1800, सेल ऑफ फर्नीचर 450 डायरेक्टली माइनस करिए या फिर यू कैन राइट ओपनिंग वैल्यू 1800, कैश रिसीव 270, लॉस ऑन सेल 180. वन एंड द सेम. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 450. तो फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस कितनी बची 1350. देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट डेप्रिसिएशन. अगर डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन रहता था तो फर्स्ट एडजस्टमेंट यहां लेते थे, सेकेंड एडजस्टमेंट वहां पे आप माइनस करते थे. उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 5% इन्वेस्टमेंट 27,000. अब इन्वेस्टमेंट आपके पास है. क्या इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिए. अगर इन्वेस्टमेंट बेच दिए होते थे तो रिसीप्ट साइड आते थे. इसका मीनिंग है आपने इन्वेस्टमेंट नहीं बेचे. इट इज एज इट इज. तो यू विल राइट ओवर हियर 5% इन्वेस्टमेंट कितना 27,000. ये इन्वेस्टमेंट आपके पास एज इट इज है बराबर. और इस पे आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल रिसीव्ड अगर हो जाता था तो रिसीव साइड आता था, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है. इट इज रिसीवेबल. रिसीवेबल है तो दो जगह आपको देना पड़ेगा, एक यहां पे और एक एसेट्स में. तो यू राइट ओवर हियर by interest on investment receivable. कितना रिसीवेबल है 5% on 27,000. तो कितना आएगा ये 1350. अगर रिसीव हो जाता था तो रिसीव साइड आता था. रिसीव नहीं हुआ है तो उसका सेकेंड इफेक्ट इंटरेस्ट रिसीवेबल.
मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो आपकी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसको वन बाय वन मैं उसको पोर्ट्रे कर रहा हूं, आइदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके बाद उन्होंने दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग में थे आपके पास 6660 और क्लोजिंग में 1800 रुपीज उन्होंने ऑलरेडी दिया है, जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अब इससे रिलेटेड आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इफेक्ट लेना पड़ेगा, पर अब यहाँ पे तीन चीज को कोलैबोरेट करना है, ओपनिंग, क्लोजिंग और करंट ईयर में जो आपने परचेस किया है स्पोर्ट्स मटेरियल। आपका ओपनिंग वैल्यू यहाँ पे वी हैव टू सी के डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल कितना आ रहा है, बराबर, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आपने ले लिए 6660, आपने क्लोजिंग वैल्यू भी उन्होंने दिया है तो ले लिया है, क्लियर विद दैट। अब इससे रिलेटेड अब देखिए, आपने 6660 का आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल था, आपने करंट ईयर में 2700 का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 6660 प्लस 2700। लेकिन वो क्या बोल रहा है, क्लोजिंग वैल्यू स्पोर्ट्स मटेरियल की सिर्फ 1800 है, यानी बाकी का स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ गया, तो डेप्रीशिएट हो गया, यूज हो गया, तो वो कहां पे आएगा, आपके एक्सपेंडिचर में। तो यू राइट ओवर हियर to sports material consume, you can write down, or you can write down to depreciation on sports material, it's one and the same। तो स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्रीसिएशन या कंजम्पशन कितना हुआ है, ओपनिंग वैल्यू कितने का था आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल था आपके पास 6660 प्लस आपने परचेज किया, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेज किया 2700, तो टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास कितना हो गया 9360। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का है, क्लोजिंग वैल्यू आपके पास कितने की है स्पोर्ट्स मटेरियल की, सिर्फ 1800। इसका मीनिंग क्या है कि बाकी का कंज्यूम हो गया, या फिर कंज्यूम हो गया या फिर डेप्रीशिएट हो गया। तो कितने का डेप्रीसिएशन हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन 7560 का डेप्रीशिएट हो गया, गॉट इट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें वी हैव टेकन एडजस्टमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, देन वी हैव टेकन एडजस्टमेंट फॉर furniture, then we have taken investment से related adjustment, fine। कैश बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग आपने ले लिया, करेक्ट कैश बुक बना के। अब रह गया एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, बराबर, adjustment related to subscription, so subscription will be on the income side by subscription कितना दिया हुआ है आपको रिसिप्ट साइड 4500, जो रिसिप्ट में किया है उसका पूरा उल्टा यहाँ पे लेंगे, क्या करेंगे, माइनस outstanding of 1617 plus outstanding of 1718 plus advance of 1617 minus advance of 1718, बराबर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस अमाउंट में इंक्लूडेड है, बराबर, उसको क्या करेंगे, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, पिछले साल का एडवांस यानी वो करंट ईयर का है इसीलिए ऐड, और करंट ईयर में जो एडवांस आया वो नेक्स्ट ईयर का है इसीलिए उसको माइनस। ये अमाउंट आपका कितना आ रहा है देखिए
4,500 minus 180 plus 270 plus 90 minus 90, तो ये नेट फिगर कितना आ रहा है 4590 is a value of subscription. So you have taken adjustment related to subscription also. Fine. Now we will go to receipts and payment. Receipts and payment में you have taken opening cash, you have taken subscription receivable. Now we will take other fees. Other fees कहाँ आएगा आपके इनकम में. Other fees कितनी है आपके पास 1800. फिर वो क्या बोल रहा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज अ कैपिटल रिसीव. डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है 90,000 बराबर. उसके बाद फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट वी हैव ऑलरेडी टेकन. फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट कहाँ पे आया ये 270 रुपए का 450 का फर्नीचर 270 में आपने बेचा 180 के लॉस पे. तो 180 रुपीज का लॉस यू हैव टेकन ऑन एक्सपेंडिचर साइड. 270 का अमाउंट आपने रिसीव किया. टोटल हो गए 450 आपने फर्नीचर के उसमें से माइनस किया और क्लोजिंग वैल्यू यू हैव रिटर्न. तो यू हैव टेकन दिस आल्सो. पेमेंट साइड क्या है देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी आपका एक्सपेंडिचर. वो कहा लेंगे आप एक्सपेंडिचर साइड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस. कितना है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस 3600 बराबर. सो आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस भी ले लिया. उसके बाद है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेज बराबर. उसका एडजस्टमेंट यू हैव टेकन. आपके पास ओपनिंग वैल्यू दी हुई थी, आपके पास क्लोजिंग वैल्यू दी हुई थी और परचेज ड्यूरिंग द ईयर था. तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव कैलकुलेटेड अ डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल. तो यू हैव टेकन दिस आल्सो. देन देयर इज अ क्लोजिंग कैश आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में यू हैव टेकन. विद दिस you have completed all the figures. Just go through it. Now we'll calculate. क्या कैलकुलेट करेंगे tell me. We'll calculate opening capital fund. Opening capital fund. Sorry, opening capital fund. Balancing figure. कितना आ रहा है देखिए ओपनिंग कैपिटल फंड. एसेट्स का टोटल 1800, 27,000, 660, 415 and 180. This is 36090. Total is 36090. Out of that subtract 90. Opening capital fund is 36,000. ये 36,000 इनर कॉलम में. इसमें सरप्लस या डेफिसिट क्या करेंगे ऐड और लेस. विल कैलकुलेट के सरप्लस है या डेफिसिट है. नाउ हियर ऑन द इनकम साइड. अब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल कितना है 13504590 और 1800. क्रेडिट का टोटल है आपके पास 7740 और डेबिट का टोटल है 1807560 और 3600. यानी डेबिट्स आर मोर देन क्रेडिट्स 11340 बराबर. तो टोटल डेबिट का ज्यादा है 11340. तो डेफिसिट कितना है यू राइट हियर बाय. कितना आ रहा है डेफिसिट 3600 इज अ डेफिसिट. यू राइट हियर बाय डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर कितना 3600. और ये 3600 यहाँ पे लाइबिलिटीज में क्लोजिंग बैलेंस शीट डेफिसिट सब्ट्रैक्ट करेंगे 3600.
तो ये कितना आएगा 32,400। देखिए बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या, 32,400 प्लस 90 प्लस 90,000, ये आ रहा है टोटल 1,22,490 लाइबिलिटीज का टोटल। एसेट्स का टोटल देखिए 270, 1800, 90, 1350, 27,000, 1350, कितना आ रहा है 122,490। This is what rectified receipts and payment, income and expenditure account and closing balance sheet. For the purpose of ascertaining the opening capital fund, we have prepared a opening balance sheet. So यहाँ पे just go through this, and if you have any doubt, please ask me. Very, very important problem. Just copy this. So this is all about problem number 15. Now look at problem number 19. Look at problem number 19. Problem number 19 क्या दिया हुआ है? I hope you have copied this. Fine. Now look at problem number 19. Now what they have given problem number 19, very simple problem. If such problems are asked in the examination, sure you are going to get the marks. Very easy problem. Look at problem number 19, what they have given. Suppose salaries paid during the 2016 were rupees 23,000. The following further information is available. Salaries unpaid on 31st March 15, that means previous year salaries payable 1400, prepaid on 31st March 15, यानी last year salaries has been paid in advance. पिछले साल आपने एडवांस में सैलरी दिया होगा, यानी वो करंट ईयर का रहेगा 400. Unpaid on 2016, that means salaries unpaid, salaries yet to be paid, outstanding on 31st March 16, यानी करंट ईयर में outstanding is 1800. और करंट ईयर में प्रीपेड सैलरी, दैट मीन्स सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज अगेन 600.
तो ऐसे 4 इंफॉर्मेशन आपको दी है और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी एंड ऑल्सो शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट. वेरी सिंपल. What you have to do is simply post all the balances they have given in a respective account. Now if you see this, salaries unpaid on 31st March, salary outstanding. I have prepared salaries outstanding account. I have prepared prepaid salaries account, and salaries which is to be debited to income and expenditure account, and how it will be shown on the expenditure side of income and expenditure. I have prepared 4 accounts. तो यहाँ पे first we'll put down all the balances as it is they have given. तो पिछले साल outstanding salary था, outstanding salary opening, यानी you can call it as salary outstanding is a liability. तो opening liability, आपका liability कौन सा balance बताता है? It will show a credit balance. तो we will post over here outstanding salaries 1/4/2015 बराबर क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4/2015 को व्हाट विल बी द अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 1400 बराबर. ये ओपनिंग बैलेंस इज अ liability, so we have posted on the credit side. उसी तरह closing outstanding balance will be on the opposite side. 31st March 16 to balance carried down. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना दिया हुआ है, देखिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया हुआ है 1800. उसी तरह प्रीपेड सैलरी, पिछले साल प्रीपेड था, एडवांस में पे किया था, तो इट इज एन एसेट. एसेट विल शो अ डेबिट बैलेंस. तो यहाँ पे 1st April 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. पिछले साल एडवांस में कितना आपने सैलरी पे किया था, उन्होंने कितना दिया हुआ है देखिए 400. उसी तरह करंट ईयर में क्लोजिंग कितना आएगा 31st March 16 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना है करंट ईयर के अंदर सैलरीज एडवांस में पे किया हुआ ₹600. दैट्स इट. सिंपली व्हाट यू हैव डन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्रेडिट में डाला, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में डाला, ओपनिंग प्रीपेड डेबिट में डाला, क्लोजिंग प्रीपेड क्रेडिट में डाला. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इसीलिए क्रेडिट में डाला, ओपनिंग प्रीपेड एसेट इसीलिए डेबिट में डाला, और क्लोजिंग उसके ऑपोजिट साइड. दैट्स इट व्हाट वी हैव डन. नाउ द थिंग इज के ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है वो कौन सा बैलेंस बता रहा है, क्रेडिट बैलेंस. तो अपन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, सैलरीज में ट्रांसफर करेंगे. तो एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग क्या बता रहा है, क्रेडिट बैलेंस, तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट. तो क्या करेंगे, ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग टू सैलरीज अकाउंट, यानी ये वाला ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहां पे ट्रांसफर करेंगे आप, सैलरीज में. तो यहां पे लिखेंगे टू सैलरीज, कितना 400. टू सैलरीज में आपने ट्रांसफर कर दिया. ये कब ट्रांसफर कर रहे हो आप ट्रांसफर कर रहे हो इसको यू आर ट्रांसफरिंग ऑन विच डेट, ओपनिंग इटसेल्फ. तो ये वाला सैलरीज में आपने ट्रांसफर किया, डेबिट में ट्रांसफर किया, तो सैलरी अकाउंट में आ जाएगा by salaries, or you can call it as outstanding salaries, कितना 400. उसी तरह ये क्लोजिंग सैलरीज जो है वो भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग है सैलरी वो क्या करेंगे आप, वो भी ट्रांसफर कर देंगे आप सैलरीज में. 31st March 15 बाय सैलरीज, कितना 1800. What you are doing, simply what you are doing, opening outstanding, closing outstanding, opening transfer to salary, closing transfer to salary. यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट. 31st March, this will be 16. 31st March 16
टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग, कितना 18, गॉट इट। उसी तरह प्रीपेड सैलरीज को भी कार्ड ट्रांसफर कर देंगे, विल ट्रांसफर टू सैलरी अकाउंट। ये प्रीपेड सैलरीज कहां पे दिख रहा है आपको, डेबिट बैलेंस, ओपनिंग इज एन एसेट, डेबिट बैलेंस। उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो एंट्री क्या आ जाएंगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी, और प्रीपेड सैलरी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 1 अप्रैल 15 बाय सैलरीज, ये क्या है, ओपनिंग ट्रांसफर, क्लोजिंग ट्रांसफर। इसी तरह ओपनिंग ट्रांसफर कितना है, 400, ये हो रहा है आपका क्रेडिट, तो सैलरी अकाउंट में इट विल बी डेबिट। 1 अप्रैल 15 टू प्रीपेड सैलरी, कितना 400। उसी तरह क्लोजिंग, that will also be transferred to a salary account. Entry will be what, prepaid salaries to salaries. 31st March 16 to salaries. This is what, closing transfer, कितना 600, total 1000। तो ये डेबिट, यहां पे क्रेडिट। हाउ मच, 600। सो दिस इज ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग, दिस इज क्लोजिंग, बराबर, ये ट्रांसफर हो गया। अब दिस अकाउंट हैज बीन क्लोज, सिंपली व्हाट वी हैव डन, we have simply posted opening outstanding on the outstanding account credit, closing यहाँ पे डेबिट में, और उसको रिस्पेक्टिव सैलरीज अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसी तरह प्रीपेड सैलरी ओपनिंग इज एन एसेट तो डेबिट में लिया, क्लोजिंग उसके ऑपोजिट साइड, एंड रिस्पेक्टिव हैज बीन ट्रांसफर टू सैलरीज अकाउंट। नाउ सैलरीज अकाउंट में कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, वी हैव टू सी दैट। वो क्या बोल रहा है, सैलरीज आपने करंट ईयर में कितनी पे की, 23,000, तो जनरल एंट्री विल बी व्हाट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। ये आपने 15-16 में यू हैव गिवन अ सैलरीज, टू सैलरीज, हाउ मच, कैश पे, कितना सैलरी पे किया है, वो बोल रहा है 23,000, 23,000 रुपीज का आपने सैलरी पे किया, बराबर। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट के कितना एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, विल सी टू दैट। व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड, 23,000 plus 400 plus 1,800, 23,400, 24,400, 24,400, 25,200. What is the total? 25,200. 25,200 में से 1,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, कितना आ रहा है 24,200। और ये कहाँ पोस्ट करेंगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हाउ मच यू आर गोइंग टू पोस्ट, यू आर गोइंग टू पोस्ट 20, इज इट, दिस इज 1,400। ये ओपनिंग है 1,400 रुपए, तो आई विल हैव टू ट्रांसफर हियर 1,400, एम आई राइट। 1,400 डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। आई हैव बाय मिस्टेक टेकन एज 400, आई हैव रेड दिस एज अ 400 बट इट इज नॉट 400, इट इज 1,400। तो ओपनिंग आई हैव ट्रांसफर 1,400 टू दिस, टोटल विल बी, यस टोटल आई हैव टेकन करेक्ट, बराबर 3,000। तो यहाँ पे ये बैलेंस कितना आएगा, 24,200 नहीं आएगा बल्कि 23,200, 23,200। क्लियर विद दैट। यहाँ पे विल टेक एक्सपेंडिचर साइड आएगा, टू सैलरीज, हाउ मच
23,200. This is how you have to take. Clear with that? अगर ये अकाउंट बना के आप नहीं देखते हो और वैसा भी कैलकुलेशन करते हो तो आपको 23,200 ही आना चाहिए. वो किस तरीके से? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है कि 23,000 रुपए आपने सैलरीज के पे किए. ये अमाउंट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं. रिसीप्ट्स एंड पेमेंट कितना दिया? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में सैलरीज पेड. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में पेमेंट साइड दिया हुआ है 23,000 आपने पे किया बराबर. अब रूल क्या है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में आपने पे किया होगा तो उसको करेंगे माइनस, लेस आउटस्टैंडिंग 1415. कितना था पिछले साल आउटस्टैंडिंग? 1415 का सैलरीज 1400 रुपए. तो ये क्या करेंगे? माइनस करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग ऐड. करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है? 1800 प्लस 1800. पिछले साल आपने एडवांस में सैलरी पे किया था यानी वो करंट ईयर की रहेंगी, प्लस प्रीपेड 1450. कितना प्रीपेड था? 400. और करंट ईयर में आपने एडवांस में पे किया यानी वो नेक्स्ट ईयर का रहेगा. कितना था करंट ईयर का? 600. नाउ वी शुड गेट द सेम आंसर 23,200. देखिए क्या आ रहा है. 23,000 माइनस 1400 प्लस 1800 प्लस 400 माइनस 600. तो व्हाट इज द आंसर? 23,000. That's what we were doing. अभी तक यही करते आ रहे हैं ना. We are doing the same thing. अभी तक अपन यही करते आ रहे थे. Same thing I have done. बराबर. सैलरीज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में 23,000 रुपए दिया हुआ है. 23,000 में से पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपने पे किया होगा तो वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, माइनस किया. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया. एक्रूअल प्रिंसिपल. पिछले साल प्रीपेड था वो ऐड किया. करंट ईयर का प्रीपेड माइनस किया. यू गॉट द आंसर 23,200. यहाँ पे भी 23,200 है. सिर्फ ये 23,200 विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर अकाउंट आई एक्सप्लेन. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटीज में इसी क्रेडिट में इसीलिए लिया क्योंकि वो लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस. ओपनिंग को सैलरीज में ट्रांसफर किया, क्लोजिंग को भी सैलरीज में ट्रांसफर किया. उसी तरह प्रीपेड डेबिट साइड दिया ओपनिंग क्योंकि इट इज एन एसेट. क्लोजिंग ऑपोजिट साइड. ओपनिंग ट्रांसफर किया सैलरीज में, क्लोजिंग ट्रांसफर किया सैलरीज में. ये सैलरी अकाउंट. ये सैलरी अकाउंट में नथिंग आई हैव डन. आई हैव जस्ट टेकन दिस ट्रांसफर बैलेंस. और अदरवाइज यू कैन सी दैट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे, ओपनिंग प्रीपेड यहाँ पे, क्लोजिंग प्रीपेड यहाँ पे. ऐसा भी देखा जाए ओपनिंग इज अ लाइबिलिटी तो यहाँ पे आ गया, क्लोजिंग उसके ऑपोजिट साइड आ गया. ओपनिंग प्रीपेड इज एन एसेट वो यहाँ आ गया, क्लोजिंग उसके यहाँ आ गया. ये अपन ने लेजर के थ्रू ट्रांसफर किया और ऐसा नहीं भी करे तो यहीं पे आएंगे बैलेंस. उसके बाद कैश पे किया 23,000. सिंपल जनरल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आई हैव टेकन एंड बैलेंसिंग फिगर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड टू दिस आई हैव टेकन. And this is with the help of normal calculation what we were doing since initial problem. बराबर. इतना पे किया, पेमेंट साइड दिख रहा है. ओपनिंग का करंट ईयर में पे करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पिछले साल के आउटस्टैंडिंग का कोई रोल नहीं है, उसको आपने माइनस किया. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया. पिछले साल का प्रीपेड करंट ईयर से रिलेटेड है इसीलिए उसको ऐड किया. करंट ईयर का प्रीपेड नेक्स्ट ईयर से इसके उसको माइनस किया. वही आंसर आया आपको 23,200 which we have taken. So this is all about problem number 19. Just copy this. So we will stop here.
we'll continue in the next lecture. Bye everyone.